ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਵੀ ਸਤੁਤੀ ਗਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਔਰ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। हिंदी दिवस के समारोह में आज हम सब एकत्रित हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ जिसमें पंजाब हिंदी परिषद के साथ हम जुड़े हैं बहुत ही सालों से। मैं साहित्य मंत्री हूँ और आज बहुत गौरव महसूस होता है कि जब हम इस दिवस को मनाते हैं। आज हमारी संस्था जो है 49 वर्ष हो गए हैं तो अगले वर्ष हम 50वीं स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं और हम यानी प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं और साथ में और भी गतिविधियां करते हैं, परंतु हिंदी दिवस कभी भूलते नहीं। चाहे कोई भी समय रहा हो, हिंदी दिवस जो है एक दिवस है जो एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में ताकि लोगों को स्मरण कराया जाता है कि हमारा राष्ट्र जो है उसकी जो भाषा है वो हिंदी है। हम सब लोग उसको अपनी जन भाषा बनाएं, अपने व्यवहार में लाएं। किसी भाषा का निरादर ना करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी राजभाषा को कभी ना भूलें, अपनी माँ बोली पंजाबी को कभी ना भूलें। बाकी सब भाषाएं हैं उसको बच्चों को सिखाएं, चाहे वो अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है या और कोई। हम सबका सम्मान करते हैं पर हमारी राज्य भाषा को चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय भाषा बने, जिससे हमारा एक मन में जो भावुकता आ रही है इस समय कि हम और भी गौरव महसूस करें। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਸੀਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਵੀ ਸਤੁਤੀ ਗਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਔਰ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਖਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂਗ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂਗ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸੌਂਗ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ऐसा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर घिर आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। थैंक बहुत ही प्यारा गीत ਸੀਗਾ। ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਮਏ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰਸ ਫਾਈਨਲਸ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਫਕਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हिंदी दिवस के अवसर पर हमें स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह कुछ बताया जाता है कि आप हिंदी के बारे में जागरूक करें कि हिंदी आजकल के टाइम पे ऐसा सोचा जाता है, हिंदी पंजाबी कोई भी भाषा हो उसके बारे में यही सोचा जाता है कि सिर्फ इंग्लिश ही अच्छी है। हिंदी पंजाबी कोई भी बोले उसका मजाक बनाते हैं, मजाक ना भी बनाए तो सोचते हैं कि इसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए ये हिंदी या पंजाबी बोल रहा है। इसलिए हम इसलिए बना रहे थे आज हिंदी दिवस, ताकि हम सबको जागरूक कर सके कि हिंदी बोले, पंजाबी बोले, जो भी बोलें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप विश्व के साथ अच्छे से नहीं चल रहे हैं, आप पीछे हैं, इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। इसलिए हमने आज हिंदी दिवस अच्छे से मनाया था। जी आपका क्या नाम है? विनय। किस प्रकार से आज हिंदी दिवस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? हिंदी दिवस में जैसे हमेशा होता है कि हिंदी को हमेशा इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। स्कूल लेवल पे हो हम हमेशा कहते हैं कि इंग्लिश को प्रायोरिटी हम दी जाती है हमेशा, लेकिन हिंदी दिवस के हम करते हैं कि हम सभी को, जो भी जिसको हिंदी का आती है, हम उसको आगे जागरूक करें कि वो आगे कर सके। हम किसी को डिमोटिवेट हिंदी में नहीं की जाती, क्योंकि हम अगर आपको हेजिटेट भी फील होता है तो आप करिए उस चीज़ के लिए। और हम पोइम्स के द्वारा, मंत्रों के द्वारा और बहुत सारे स्तुति के अलावा और बहुत सारे जो हमें हिंदी के जितने भी हमें उसके बारे में ज्ञान है, हम उस भाषण वगैरह हम उसे देकर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सर मेरा नाम नीतीश कुमार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज एससीडी कॉलेज के अंदर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और हिंदी दिवस के ऊपर मैंने भी यहाँ पे एक पोइट्री की है। तो हिंदी दिवस बनाने के क्या कारण है? हिंदी दिवस हमें बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो सभी बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि हिंदी का क्या महत्व है। हमारा देश हिंदी जो संस्कृत से आई है, तो हमारा जो पुराना इतिहास है वो हमें बच्चों को बताना है कि किस तरह हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सॉरी, क्या सुनाया आज आपने? सर मैंने एक पोइट्री सुनाई जिसका शीर्षक है तो इंसान है भगवान नहीं। तो इसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह इंसान जो उसके पास ताकत है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने आप को भगवान समझ रहा है। तो उसके अंदर मैंने बताया है कि वो कैसे जंगल को नष्ट कर रहे हैं, प्रदूषण का लेवल किस तरह बढ़ रहा है और वो अपने आप को भगवान से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। ये मैंने अपनी कविता में बताया है। तो जैसे मैं अपनी कविता की एक पंक्ति पेश करना चाहूँगा। क्यों तू इन बेज़ुबानों का घर उजाड़ रहा है, क्यों तू इन बेज़ुबानों का घर उजाड़ रहा है, प्रकृति के नियमों को क्यों तू बिगाड़ रहा है। इन्हें भी तो जीने का अधिकार है, जितना तेरा है उतना इनका भी ये संसार है। तुझे देख तरस ना आता इन बेज़ुबानों पर, तू तो पत्थर से भी बदतर है, वो तेरी करनी से अनजान नहीं, याद रख तू इंसान है भगवान नहीं। जी ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? नेहा कुमारी। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? एससीडी गौरमेंट कॉलेज फॉर लुधियाना बॉयज़ ਆ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदु यह भारत सबसे बड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदु यह भारत सबसे बड़ा रहेगा। जी क्या सुनाएंगे आप? जी एक कविता है हिंद हिंदू हिंदुस्तान, उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। हिंद हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान।
14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल जाते हैं हम, हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हमारे नेता महान। हिंद हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। धन्यवाद। जी सर, किस प्रकार से अब आज हिंदी दिवस समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में इस बात की घोषणा की गई कि हिंदी देश की राजभाषा होगी। राजभाषा से मतलब था जो भारत सरकार के कामकाज की भाषा होगी। तो दो बातें उन्होंने उसमें रखी कि जो जन सामान्य है इस देश का वो अंग्रेजी नहीं जानता है, उससे जुड़ना भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और बड़ी क्या पहली प्राथमिकता है। यदि जन सामान्य से न जुड़ेंगे तो भारत सरकार के होने और न होने का क्या मतलब है। इसलिए 14 सितंबर सन 1949 को हमारे पुरखों ने इस देश को एक भाषा दी जिसका नाम है राजभाषा हिंदी। उसी के साथ उन्होंने लिपि का मामला भी सॉल्व किया। निश्चित रूप से वो देवनागरी लिपि है और भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है उसको भी संविधान में स्थान दिया गया। ये देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी काम थे। सर, हिंदी दिवस समारोह आज एससीडी कॉलेज कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं अपना यशपाल बांगिया, मैं पंजाब हिंदी परिषद का महामंत्री हूँ, संस्थापक महामंत्री हूँ। आज हमारी संस्था जो है 49 वर्ष हो गए हैं, तो अगले वर्ष हम 50वीं स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं और हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं और साथ में और भी गतिविधियां करते हैं, परंतु हिंदी दिवस कभी भूलते नहीं। चाहे कोई भी समय रहा हो, हिंदी दिवस जो है एक दिवस है जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में, ताकि लोगों को स्मरण कराया जाता है कि हमारा राष्ट्र जो है उसकी जो भाषा है वो हिंदी है। हम सब लोग उसको अपनी जन भाषा बनाएं, अपने व्यवहार में लाएं। चाहे हम पंजाब में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा पंजाबी है, माँ बोली पंजाबी है, परंतु राष्ट्रभाषा हिंदी है। माँ बोली तब आगे बढ़ेगी जब राष्ट्रभाषा उसके साथ आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए आज प्रतिवर्ष आज हम गवर्नमेंट कॉलेज के साथ प्रतिवर्ष हम संयुक्त रूप से हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि मैंने भी MA हिंदी यहीं से की है, तो हिंदी से हमारा लगाव भी है, प्यार भी है। ये हमारी जन भाषा है, इसके द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 38 वर्ष डाक विभाग में कार्य किया, वहाँ पर जनसंपर्क अधिकारी रहा, साथ में हिंदी अधिकारी भी रहा और हिंदी में सारा कार्य किया डाक विभाग में। तो मुझे हिंदी वाला, मुझे सरदार बेअंत सिंह, स्वर्गीय बेअंत सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, वो मुझे बांगिया हिंदी वाला ही कहते थे। तो आज मैं सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन का प्रधान हूँ और मैं प्रति वर्ष एक पुस्तक हिंदी में लिखता हूँ जो सीनियर सिटीजन का उसके ऊपर होती है। मैं 2009 से प्रति वर्ष एक पुस्तक लिख के आज 12 पुस्तकें लिख चुका हूँ। 13वीं पुस्तक जो है मेरी वो जो है वो उसको मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ ये 1 अक्टूबर को विश्व नागरिक दिवस के ऊपर। तो इस प्रकार हिंदी जो जन जन की भाषा है, तो मैं कहता हूँ ये अब तो सारे राष्ट्र की क्या हर लोग हिंदी को जान गए हैं, पहचान गए हैं। इसको व्यवहारक रूप में हम लाना चाहते हैं। ये बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने कार्यों में जहाँ भी हो सकता है प्रयास करें। हमें किसी भाषा दूसरी भाषाओं से वो नहीं है, नफरत नहीं है। ये भाषा जो है एक सौहार्द की भाषा है। तो आओ, आज जो राष्ट्र दिवस जो है हिंदी दिवस है, ये हमारे लिए एक स्मरणीय दिवस है कि हम स्मरण रखें। तो आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने अधिक से अधिक अपने जीवन में हिंदी को व्यवहार में लाएंगे। यही आज का संदेश है। और भाषा विभाग पंजाब के साथ में हम जुड़े हुए हैं और पंजाब से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा वो पंजाबी के साथ साथ राष्ट्रभाषा को भी गौरवंत करे। और साथ में आज 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ राजभाषा के स्थान पर अब इसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, इसका नाम दे दिया जाए। नाम से ही बहुत कुछ होता है। लोग इसमें अब ऐसे नहीं हैं, क्या हमारे सब प्रांतों के लोग अब हिंदी बोल रहे हैं, उनके साथ कोई बोल नहीं है, प्यार है। तो आज ये प्यार की भाषा जो है, मैं चाहूँगा कि ये राष्ट्रभाषा का दर्जा ये अमृत महोत्सव के ऊपर इसको घोषित हो जाना चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए सभी को आज बहुत बहुत बधाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के समारोह में आज हम सब एकत्रित हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़, जिसमें पंजाब हिंदी परिषद के साथ
हम जुड़े हैं बहुत ही सालों से। मैं साहित्य मंत्री हूँ और आज बहुत गौरव महसूस होता है कि जब हम इस दिवस को मनाते हैं, पर साथ साथ थोड़ा सा ये मन में भावुकता आती है कि क्यों हम इस भाषा को उतना सम्मान नहीं देते जितना आज हम युवा पीढ़ी को अंग्रेजी भाषा की ओर लेके जा रहे हैं। तो मैं किसी भाषा का निरादर ना करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी राजभाषा को कभी ना भूलें, अपनी माँ बोली पंजाबी को कभी ना भूलें। बाकी सब भाषाएं हैं उसको बच्चों को सिखाएं, चाहे वो अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है या और कोई। हम सबका सम्मान करते हैं, पर हमारी राज्य भाषा को चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय भाषा बने, जिससे हमारा एक मन में जो भावुकता आ रही है इस समय कि हम और भी गौरव महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हिंदी दिवस समारोह है, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलूँ और अपने दोस्तों को बोलूँ कि हिंदी में बात करें और हिंदी में ही पताचार करें। तो ये मेरा मैसेज सबके लिए है। थैंक यू। सो दोस्तों से आस करते कि तो साडा दा प्रोग्राम बहुत ही वधिया लग्या होगा। लुधियाना लाइव दे पेज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रोग्राम वधिया लगे सो शेयर जरूर करो। सो कैमरा पर्सन नवाब दे नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।